شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ رب جو بندے کے دل کے اندر چھپی ہوئی آہوں کو بھی سن لیتا ہے، جو آنسو گرنے سے پہلے اس کی وجہ جان لیتا ہے، جو خاموش لبوں کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ وہ رب جو دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے۔ وہ رب جو تب بھی تھام لیتا ہے جب ساری دنیا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کے لیے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، رشتوں کے دروازے، دوستی کے دروازے، اعتماد کے، محبت کے، امیدوں کے دروازے، رزق کے دروازے، قبولیت کے دروازے، کامیابی کے دروازے، سکون کے دروازے، عزت کے، صحت کے، واپسی کے، معافی کے دروازے، اور کبھی کبھی تو اپنے ہی گھر کے دروازے بھی۔ انسان دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور اندر سے خاموشی آتی ہے۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ کھلتا نہیں۔ وہ انتظار کرتا ہے مگر انتظار طویل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب انسان تھک کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اسی تھکن کے بعد، اسی ٹوٹن کے بعد، اسی بے بسی کے بعد، آسمان کے نیچے، زمین کی وسعتوں کے بیچ، خاموش رات کی چادر تلے، ستاروں کی گواہی میں ایک اور دروازہ موجود ہوتا ہے، جو دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ جس پر کبھی تالا نہیں لگتا، وہ دروازہ جو ہمیشہ ہی کھلا رہتا ہے، وہ دروازہ جو انسان کے آنسوؤں سے کھلتا ہے، وہ دروازہ جسے کہتے ہیں تہجد کا دروازہ، رات کا تیسرا پہر، رب کی خاص ساتھ۔ رات کا تیسرا پہر یہ عام وقت نہیں، یہ بہت ہی خاص وقت ہے۔ دن میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں مگر اس وقت اللہ بندے کو بلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہے جب رحمت جھک کر زمین کے قریب آتی ہے۔ یہ وہ ساعتیں ہیں جب بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا۔ تہجد صرف نماز نہیں، یہ اعلان ہے، یہ اعلان ہے کہ یا اللہ میں تیرے لیے اٹھا ہوں۔ یہ اعلان ہے کہ مجھے سب نے نہیں سمجھا مگر تو سمجھ لے۔ یہ اعلان ہے کہ میں ٹوٹا ہوں مگر تیرے سامنے جھکا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کو جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں، جو اس کے سامنے جھکتے ہیں، جو اس سے مانگتے ہیں۔ جب سارے راستے بند نظر آئیں، جب نوکری نہ ملے، جب کاروبار بیٹھ جائے، جب بیماری لمبی ہو جائے، جب رشتے بکھر جائیں، جب دوست بدل جائیں، جب اولاد کی فکریں سونے نہ دیں، جب قرض سر پر چڑھ جائے، جب عزت خطرے میں لگے، جب لوگ کردار پر سوال اٹھائیں، جب سچ بولنے پر تنہا ہونا پڑے، جب نیکیوں کا بدلہ بدگمانی میں ملے، تو ایسے میں انسان سوچتا ہے اب کہاں جاؤں، اور جواب آتا ہے رات کے تیسرے پہر آ جاؤ۔ تہجد پڑھنے والوں کا مقام بہت بڑا ہے۔ جو لوگ روز تہجد پڑھتے ہیں وہ عام زندگی جیتے ہوئے بھی غیر معمولی ہوتے ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ان کی گفتگو میں سکون ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے، ان کے فیصلوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے جو دوسروں کو نظر بھی نہیں آتی۔ کبھی مسئلہ آنے سے پہلے حل ہو جاتا ہے، کبھی نقصان فائدے میں بدل جاتا ہے، کبھی دشمن راستہ بدل لیتا ہے، کبھی دل کا خوف یقین میں بدل جاتا ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ تہجد کا اثر ہوتا ہے۔ تہجد کی خوبصورتی تصور کریں، اندھیرا ہے، سب سو رہے ہیں، گھر خاموش ہے، آپ وضو کرتے ہیں، پانی چہرے پر پڑتا ہے اور دل بھی دھلنے لگتا ہے۔ اب سجدے میں جاتے ہیں آپ اور زمین آپ کے آنسو جذب کر لیتی ہے۔ کوئی کیمرہ نہیں، کوئی تعریف نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف آپ اور آپ کا رب۔ یہی تہجد کی خوبصورتی ہے۔ تہجد اپنے اندر
बहुत ही रूहानी असरात रखती है। जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं उनके दिल से हसद निकल जाता है, गुस्सा कम होने लगता है, सोच में पाकीज़गी आती है, गुनाहों से नफ़रत पैदा होती है, नेकी आसान लगने लगती है, ज़ुबान नरम हो जाती है, दिल शुक्रगुजार हो जाता है। तहज्जुद इंसान को बदल देती है। कहते हैं बाज़ दुआएं दिन में कबूल नहीं होती क्योंकि वो रात का इंतज़ार कर रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत ही ख़ास होती हैं। बाज़ नसीब लिखे जा चुके होते हैं मगर तहज्जुद उन्हें बदल देती है। बाज़ तकदीरें सख्त होती हैं मगर आंसू उन्हें नरम कर देते हैं। कभी कभी तकदीर बहुत सख्त लगती है, लगता है जैसे सब लिखा जा चुका है, मगर याद रखें दुआ तकदीर को बदल सकती है। और सबसे ताकतवर दुआ वो होती है जो तहज्जुद में मांगी जाए। कितनी ज़िंदगियां बदली, कितने नसीब पलटे, कितने फैसले नरम हुए, सिर्फ एक सजदे की वजह से, तहज्जुद के सजदे की वजह से। जो लोग रोज़ तहज्जुद पढ़ते हैं वो जल्दी मायूस नहीं होते, वो लोगों से कम और अल्लाह से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। वो मुश्किल में भी नहीं टूटते, उनके चेहरे पर नूर होता है, उनकी ज़बान में तासीर होती है और अल्लाह उनके लिए रास्ते आसान बनाता है। अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते वहाँ से बनाता है जहाँ रास्ते नज़र ही नहीं आते। कई लोग पूछते हैं रिस्क क्यों रुक गया। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, रिस्क सुकून भी है, रिस्क सेहत भी है, रिस्क अच्छे लोग भी हैं। तहज्जुद रिस्क के दरवाज़े खोल देती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह के लिए जागता है तो अल्लाह उसके लिए इंतज़ाम करता है। कितनी माएँ हैं जो रात को उठकर औलाद के लिए रोती हैं, कितने बाप हैं जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सजदे में गिर जाते हैं। ऐसे आंसू ज़ाया नहीं जाते। अगर कोई शख्स 40 दिन मुसलसल तहज्जुद पढ़ ले इखलास के साथ, सच्चे दिल के साथ, तो उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ जो इंसान सोच भी नहीं सकता। रूह पाकीज़ा हो जाती है, साफ़ हो जाती है और इंसान तो यकसर बदल जाता है। इतनी फजीलत वाली नमाज है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो। ये हुक्म आम नहीं, ये कुर्ब का रास्ता है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग रात को बहुत कम सोते हैं। पता है ये किन लोगों की बात है? ये अल्लाह के मुकर्रबीन की बात है। वो लोग जो अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हैं, जो अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, वो तहज्जुद लाज़मी पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है। सोचिए, फ़राइज़ के बाद सबसे अफजल। ये आम इबादत नहीं, ये ख़ास लोगों की इबादत है। अगर तहज्जुद के लिए उठ नहीं पाते हो, तहज्जुद पढ़ना चाहते हो, तहज्जुद मुश्किल लगती है, तो सबसे पहले आप इशा के बाद नियत कर लें कि मैं आज तहज्जुद पढ़ूँगा। सोने से पहले दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे वक्त तहज्जुद जगा दीजिएगा, और सिर्फ जगाइएगा नहीं बल्कि उठा दीजिएगा। 2 रकात से आगाज़ करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, सजदे में ज़्यादा देर ठहरें, अपने दिल की बात करें। तहज्जुद लंबी हो या छोटी, असल चीज़ इखलास है, क्योंकि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत खालिस होगी तो अमल कबूल होगा। अगर आप टूट चुके हैं, अगर आप थक चुके हैं, अगर आप रो रो कर मांग चुके हैं, अगर आपको लगता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, तो एक बार तहज्जुद ज़रूर पढ़ें। शायद आपकी दुआ इसी ख़ास वक्त के इंतज़ार में हो, तहज्जुद के इंतज़ार में हो। तहज्जुद दिलों का सुकून है। तहज्जुद दिल के अंदर की बेचैनी ख़त्म कर देती है। जो बात किसी को ना कह सकें आप, वो सजदे में कह दें। आप अपने आप को हर बोझ से आज़ाद महसूस करेंगे। जो मसला नामुमकिन लगता है, जो दुआएं नामुमकिन लगती हैं, एक बार तहज्जुद में खालिस नीयत के साथ मांग कर देखें तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है, ये नमाज ही ऐसी है जिससे नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, जिससे ज़िंदगी में मौजज़े होते हैं। ये तो वो वक्त है जब अल्लाह ताला खुद फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं।
कभी आपने गौर किया है कि जैसे ही तहज्जुद का नाम सुनने को मिलता है, नमाज शब का नाम सुनने को मिलता है, जब आप तहज्जुद के बारे में सोचते हैं तो दिल में एक अजीब सी नरमी क्यों उतर आती है? ये नरमी कैसे आती है, कहाँ से आती है? ये एहसास क्यों पैदा होता है कि ये कोई आम नमाज नहीं, ये कोई आम वक्त नहीं, ये कोई आम दुआ नहीं। तहज्जुद का नाम सुनते ही दिल में एक उम्मीद जागती है। ऐसा क्यों लगता है कि अगर अब तक कुछ नहीं मिला, अगर बहुत कुछ मांगा मगर मिला नहीं, अगर दरवाजे दिन में बंद हैं तो तहज्जुद के बाद कुछ बदल जाएगा। ये ख्याल कहाँ से आता है? ये ख्याल किसी किताब या बयान से पहले दिल के अंदर क्यों उतर जाता है? इसलिए कि तहज्जुद सिर्फ इबादत नहीं, ये एक कैफियत है, एक हालत है, एक मुलाकात है, और ये वो वाहिद लम्हा है जहाँ इंसान अपनी असल हालत में अल्लाह के सामने खड़ा होता है। किसी किस्म का कोई दिखावा नहीं होता। ये रात की तन्हाई में अल्लाह और बंदे के दरमियान एक खूबसूरत गुफ्तगू है, एक रूहानी सफ़र है। दिन की नमाज़ें बहुत अज़मत वाली हैं, फ़जीलत वाली हैं, फ़र्ज़ है, ज़िंदगी का निज़ाम है। लेकिन दिन की नमाज में हम दुनिया के हिसार में होते हैं। फजर के बाद हम सोचते हैं कि हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हमने ये काम करना है, हमने वो काम करना है। ज़ोहर में हम घड़ियाँ देखते हैं, जल्दी होती है। असर में फ़ौरन से कोई काम याद आ जाते हैं। मगरिब के बाद थकन महसूस होती है, थकन गालिब आ जाती है। इशा के बाद ज़हन नींद मांगता है, बिस्तर मांगता है। लेकिन तहज्जुद तो कैसी नमाज है जिसके बाद कोई दुनियावी कामों की फहरिस्त नहीं होती, कोई टास्क नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती, कोई दुनिया खींचकर वापस अपनी तरफ नहीं बुलाती। ये वो वक्त है जब इंसान को मालूम होता है अब अगर मैंने बात की तो बस अल्लाह से बात की है, और अगर मैं रोया तो बस अल्लाह के सामने। एक अल्लाह है और एक उसका बंदा है, कोई तीसरा नहीं है। दिन में हम अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, रात को अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? और जब कोई खुद आपको बुला रहा हो तो मुलाकात का मज़ा कुछ और होता है। अताएं बड़ी ख़ास हो जाती हैं, अताओं का अंदाज़ बड़ा मुनफरिद होता है। यही वजह है कि तहज्जुद की कैफियत दिन की नमाज़ों में नहीं होती। ये वक्त इंसान पर एक ख़ास कैफियत तारी करता है। जिस्म थका हुआ होता है, आंखें बोझल होती। इसीलिए ये वक्त तहज्जुद सच्चाई, खुलूस और आजिज़ी के लिए मौजू होता है। ये सच्चा और खालिस इश्क होता है जो इंसान को रात के अंधेरे में, रात के तीसरे पहर मीठी नींद से जगाकर अल्लाह ताला की बारगाह में ला खड़ा करता है। रमज़ानुल मुबारक का रहमतों और बरकतों वाला महीना चल रहा है। इसमें तहज्जुद पढ़ना निहायत ही आसान है, क्योंकि रोज़े के लिए सहरी के वक्त हम जागे हुए होते हैं और सहरी से कुछ टाइम पहले हम आसानी से आराम के साथ तहज्जुद पढ़ सकते हैं। एक रूटीन बनी हुई है। अब तो ना जागना मुश्किल है, ना उठना मुश्किल है, और ना ही तहज्जुद पढ़ना मुश्किल है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है, एक ख़ास इनायत है कि हम आसानी से इस महीने में तहज्जुद पढ़ सकते हैं और अपनी तहज्जुद पढ़ने की इस रूटीन को पुख्ता बना सकते हैं, क्योंकि पूरा महीना हमारे पास है। आखिर में दुआ आमीन ज़रूर कहिएगा। या अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हमें तहज्जुद पढ़ने की ताकत दे। हम सुस्त हैं, हमें बेदारी अता फरमा। हम गाफिल हैं, हमें अपनी याद में जगा दे। या रब, जब सब दरवाज़े बंद हो जाएं तो हमें याद रहे कि तेरा दरवाज़ा खुला है, हमेशा खुला है। हमें उन लोगों में शामिल कर जिन्हें तू रात के वक्त अपने करीब बुला लेता है, जिन्हें अपना कुर्ब अता करता है।
हमें रिस्क में वुसअत दे, हमें दिल का सुकून दे, हमें ऐसी ज़िंदगी दे जो तेरे करीब ले जाए। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी नस्लों में नूर रख। या अल्लाह पाक हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल फरमा। या अल्लाह जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें उन लोगों में उठाना जो रातों को तेरे लिए जागते थे। हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।